Good morning, student of class 9. The previous day we discussed in exercise 2.3 and also we entered in exercise 2.4. In 2.4 we will confirm about factorization system. That is it. I think previous day we completed the first part of question number first. Px equal to given x2 minus x square minus 2 plus root of 2 into x plus 4. Then we have been to check about x plus 1 is a factor or not. You know that if x plus 1 is a factor, so remainder comes out with 0. अब remainder कैसे हमें 0 कैलकुलेट करना है उस पर हम डिस्कस करेंगे. तो रिमाइंडर्स अगर जीरोस आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करें समझिए जरा. तो सबसे पहले इसको चेक करना है x plus 1. So we can assume that x plus 1 equal to 0, so x equal to minus 1. So p minus 1 cube minus 1 square minus 2 plus root of 2 minus 1 plus 2. minus 1 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या होगा minus 1. इसका करेंगे minus 1 प्लस minus 1 into माइनस करेंगे तो प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2 माइनस और माइनस कैंसिल 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2 एंड माइनस 2 both cancel root 2 we get 2. So in this way we see that remainder when remainder comes out remainder cannot be comes out with 0. remainder बेटा 0 नहीं आ रहा है. It means अगर remainder 0 नहीं आ रहा तो x plus 1 is not a factor. Okay, so student of class 9, same process you have need to do its other terms. In question number 2, use factor theorem to determine whether gx is a factor or not. आपको चेक करना है क्या gx px का फैक्टर है. अब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर बेटा क्या आएगा 0 है. तो समझे जरा. So students use factor theorem. तो because gx like is a linear polynomial, अगर gx का क्वाड्रेटिक या क्यूबिक है तो उसको लॉन्ग डिवीजन से आप सॉल्व करेंगे. किससे सॉल्व करेंगे? लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके. और अगर ये लीनियर है तो यू कैन फाइंड आउट डायरेक्टली you have need to find out directly its limit. कैसे? हमने gx को वैल्यू को 0 माना तो x की वैल्यू क्या होगी -1. यहां पर प्लस क्या होगी -1 2 into -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 into -1 और -1. तो ये आ गया 2 into -1 प्लस 1 प्लस 2 -1 -2 1 प्लस 2 कैंसिल -1 प्लस 1 कैंसिल. रिमाइंडर क्या आ गया 0. So it means if remainder comes out with 0, अगर रिमाइंडर 0 है तो x plus gx is the factor of dx. और रिमाइंडर का 0 ना है तो इट मीन इज नॉट ए फैक्टर. ठीक है. तो स्टूडेंट इन दिस वे यू हैव नीड टू डू इट सेकंड एंड थर्ड. ओके. सो स्टूडेंट हम इस पर डिस्कस करते हैं. Then we discuss in question number 3. Then question number 3. Third is given that find the value of k find the value of k if x minus 1 is a factor of px. Point first, px is given x square plus xn. So that x minus 1 is a factor. What is given? X minus 1 is a. So initially we can assume x minus 1 0. So x equal to 1.
So student, you know that if x minus 1 is a factor, so it's compulsory that remainder comes out to 0 in the value of polynomial at that point is 0. अगर बेटा फैक्टर होगा तो इस पॉइंट पे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मतलब क्या होगा, p1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। x इक्वल टू 1 अपॉन तो p1 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस बस फैक्टर तो ये 0 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस तो 0 इक्वल टू 2 प्लस 3 तो a की वैल्यू क्या होगी। That's clear? तो बड़ा in this way, student of class 9, you can solve its second part and third part. मैं आपको थर्ड पार्ट और इंट्रोड्यूस करूंगा। बड़ा पॉलिनोमियल px क्या है, kx स्क्वायर minus 3x so that x minus 1 is a factor। x minus 1 बेटा क्या है, अगर x minus 1 बेटा फैक्टर है तो इनिशियली we can assume that x minus 1 0 so x equal to 1। अब 1 पुट किया तो p1 equal to क्या होगा, k into 1 is to 3 into 1 and you know that it is a factor तो remainder क्या होगा, यानी कि value of the polynomial at x equal to 0 is k minus 3 so 0 equal to 2k minus transpose 3 equal to so k equal to क्या होगा। In this way we can find the value of k। So student of class 9, then you can solve its two parts that remain two parts or in this way this third question be completed। Okay, then see question number 4। but अब fourth question पे बात करते हैं। fourth question is the factorization of quadratic polynomial and fifth question is the factorization of cubic polynomial। okay, then see it's question number 4। समझे, फोर्थ क्वेश्चन की बात ये क्या कह रहा है, फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस ये आपके पास है। But it is a quadratic polynomial, first you have need to arrange it। how can we arrange it, first we can write down highest power then after lowest, at last we can take constant। अब आप क्या करें बेटा, इस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का रफवर्क में प्रोडक्ट कर दो तो कितना हो गया, 12x स्क्वायर into 1 यानी कि 12x। that's clear। अब देखो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, then you have need to split middle term। आपको मिडिल टर्म को ऐसे टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट या स्प्लिट करने की जरूरत है कि जिनका प्रोडक्ट कितना हो 12x और जिनका एडिशन कितना हो, मिडिल में क्या है 7x। एक्चुअल में प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो एडिशन भी सोचते हैं और प्रोडक्ट अगर नेगेटिव होता तो मिडिल टर्म को ऐसे टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते जिनका प्रोडक्ट तो इसके इक्वल हो एंड जिनका डिफरेंस प्रोडक्ट माइनस में है तो डिफरेंस पे कंसंट्रेट करते हैं और प्रोडक्ट प्लस में है तो इस पे कंसंट्रेट एडिशन में। ठीक है, अब प्रॉब्लम में आपको क्लियर समझने क्या हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करें, तो देखिए प्रोडक्ट का के साथ में क्वेश्चन नंबर क्या है 12, इसमें 12 क्या क्या करें फैक्टर्स, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया। ओके, अब इनके जो प्राइम फैक्टर्स है दिस नंबर यू कैन मेक एनी टू पेयर दैट क्रिएट सम इज 7। देखिए 2 2 4 एंड 3, 4 एंड 3 का क्या होता है
4 एंड 3 का सम कितना होगा 7 और दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 12। तो मिडिल टर्म ब्रेक का क्या होगा 12x माइनस 4 प्लस 2 इनटू x ये आ गया 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x एंड ओके। अब इन दोनों से क्या कॉमन होगा 4x ब्रैकेट में क्या आ गया 3x माइनस 1 इन दोनों से क्या कॉमन है माइनस डी क्या आ गया इट इज a first term it is a second term तो in first bracket 3x minus 1 in second bracket 4x minus 1 ओके। दोनों ब्रैकेट में और देखो जो पहले ब्रैकेट में है वो दूसरे में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो आप लिखेंगे कहीं ना कहीं मिस्टेक किया तो 3x minus 1 3x minus 1 3x minus 1 कॉमन लिया तो इसका 4x minus 1 आ गया। दिस इज a required without ठीक है। So we discussed in another part same process you can do it second part we discussed in third part is given 6x square plus 5x minus तो 6 का कितना हो गया 36 देखिए ना बड़ा प्रोडक्ट करते हैं 6x square minus 6 36x प्रोडक्ट कैसा आ रहा है नेगेटिव मतलब you have made to split middle term that the product is 36 and difference is 5। अब आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा क्या करें 36 के आपने ये क्लियर समझ लिया कि क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव था तो डिफरेंस पे हमें डिस्कस करना है। डिफरेंस मिड में क्या है 5 डिफरेंस क्या हो 5 एंड प्रोडक्ट क्या हो 36 प्राइम फैक्टर कीजिए ये रफल का होता है रफल करेंगे 18 9 3 3 4 अब ऐसे तो पेयर बनाइए जिनका डिफरेंस कितना हो 5 तो 3 3 जा 2 2 जा 4 तो 9 and 4 प्रोडक्ट इज 36 डिफरेंस इज 5 तो आपके पास में क्या बन गया 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 इनटू x तो इट इज a 6x स्क्वायर प्लस 9x minus 4x minus what is common what term common as 3x so it is a 2x plus what is the common minus 2 so 2 is 4 2 3 is 6 both bracket have same factors तो आप 2x plus 3 को कॉमन लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट 2x plus 3 second 2x minus 2 that's clear the most important अब आपको क्वाड्रेटिक का जब फैक्टराइजेशन आएगा तभी क्यूबिक आ पाएगा तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स इनके फैक्टराइजेशन आपको बहुत अच्छे से सीखना है बिकॉज़ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिडिल टर्म ये आपको स्प्लिट करना आ गया तो समझ लो क्यूबिक पॉलीनोमियल्स भी आपको आ गए ठीक है ये प्रोसेस आपके पास में दिस इज ए फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल this factorization of quadratic polynomial okay so two parts जो है वो आपको सॉल्व करने हो जाएंगे। चलिए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं या एक फोर्थ पार्ट और इसका देखते हैं ठीक है फोर्थ पार्ट पे बात करते हैं इट्स फोर्थ पार्ट बेटा फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास 3 x square minus 6 and minus 1 this is the question we have read instruction is given factorize first to multiply first and last term so 3x square minus 4 is a 12x प्रोडक्ट कितना हो 12 डिफरेंस कितना हो 12 तो आप क्या करेंगे 3x 4 minus 3 4 3 is a 12
और 4 माइनस 3 अगर कभी 7 था तो हमें क्या करना पड़ा था प्लस, बिकॉज प्रोडक्ट इज गिवन पॉजिटिव, प्रोडक्ट इज गिवन नेगेटिव, तो we can discuss it about difference. Any problem? Then after open bracket, this is minus 4x plus 3x minus. So what is common? Here x. So 3x minus. What is common? Nothing, that is a positive. So 3x minus. First second. पैराब्रेकेट दूसरा, पैराब्रेकेट से कॉमन हो गया 3x minus 4. दूसरे से क्या फॉर्म, दूसरे में क्या बचा? This is a required factorization. This is required factorization. So student of class 9, first we have need to learn about quadratic polynomial. How can we factorize quadratic polynomial? This process we confirm, then we can discuss about cubic polynomial. तो स्टूडेंट्स आपको इस क्वाड्रेटिक को बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन करने हैं, एग्जांपल्स और रिबन पीछे गिवन है, एग्जांपल्स भी आप फैक्टराइज करें, अच्छे से करें, क्वाड्रेटिक क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे और नेक्स्ट क्लास में हम क्यूबिक पे बात करेंगे, ठीक है? पहले आप क्वाड्रेटिक को अच्छे से कंफर्म करें, ओके? सो स्टूडेंट्स वी कैन डिस्कस on next day on next class, that is how can we factorize a cubic polynomial. Okay, thank you so much.